Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lloyd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Indian Constitution for the All India Bar examination as well as any of the state judiciary examination where Constitution is the part of syllabus. So our first question is, who said preamble is the key to the Constitution? Preamble is the key to the Constitution has been said by whom? Option A, Dr. B.R. Ambedkar. Option B, Dr. Rajendra Prasad. Option C, Jawaharlal Nehru. Or is it option D, that is C. Rajgopalachari? किसने ये बात कही है कि preamble तो की है Constitution का? And the correct answer to this question is option number A, that is Dr. B.R. Ambedkar. Okay? Dr. B.R. Ambedkar said that preamble is the key to the Indian Constitution. The next question is, Article 19 of the Constitution of India contains. हमारा fundamental rights Article 12 से Article 35 तक extend करता है. And Article 19 talks about the right to freedom. तो इसमें कितने freedoms हैं? Do we have 9 freedoms, 8 fundamental freedoms, 7 fundamental freedoms, or do we have 6 fundamental freedoms? As per Article 19, we talk about the 6 fundamental freedoms. That means option D is the correct option. The next question is, Chairman of the National Human Rights Commission is appointed by. National Human Rights Commission के chairman को कौन appoint करता है? Is it option A, Prime Minister? Option B, President? Option C, Vice President? Or is it option D, that is Council of Ministers? Chairman of the NHRC is appointed by whom? तो question number 103 का सही आंसर हो जाएगा option number B, that is President of India appoints the Chairman of National Human Rights Commission. The next question is, which among the following is not a fundamental right? इनमें से कौन सा fundamental right नहीं है? क्या right to equality fundamental right नहीं है? Right to property नहीं है? Right to freedom या फिर right against exploitation? इन चारों में से कौन सा fundamental right नहीं है? Not a fundamental right. Okay? Right to equality हमारा Article 14 से Article 18 तक extend करता है. राइट टू फ्रीडम हम आर्टिकल 19 में अभी देखे हैं एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया हुआ है. राइट टू प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन इसे अमेंड कर दिया गया और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया एज पर आर्टिकल 300A. तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, rights given in the constitution are called fundamental rights. Constitution में जो rights होते हैं उसे हम fundamental rights कहते हैं. आखिर क्यों? क्या वो natural rights हैं इसलिए? वो suspend नहीं हो सकते इसलिए? They are a part of the constitution या फिर they can be enforced and safeguarded by the constitution. आखिर इनमें से क्या वजह है कि हम constitution के rights को fundamental rights कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दे कैन बी इम्पोज्ड एंड सेफगार्डेड बाय द कोर्ट्स. सी, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो यू कैन फाइल अ पिटीशन, दैट इज रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 if you want to file a petition in Supreme Court, and you can file a writ petition under article 226 if you want to file in the High Court. ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 32 and 226 दो रेमेडीज हैं for safeguarding our fundamental right. The next question is, Article 32 stands suspended during an emergency under which of the following articles? Article 32 हमारा suspend हो जाता है, लेकिन दो ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें हम suspend नहीं करते हैं और उन दो आर्टिकल्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32. तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं? एक्सेप्ट 2, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 हमारा सस्पेंड नहीं होता है. द ऑप्शंस आर आर्टिकल 352, 356, 360
और इज इट आर्टिकल 362? ये सारे इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं एंड इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 352। एज पर आर्टिकल 352 हम आर्टिकल 32 को सस्पेंड करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आर्टिकल 20 एंड 21 हमारा सस्पेंड नहीं हो सकता है किसी भी मामले में। आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, 356 में हम स्टेट इमरजेंसी देखते हैं जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, एंड आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी इज कंटेन्ड इन, दिस विल बी आर्टिकल 23। ओके, हमारे कौन से आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कही गई है? इज इट आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और इज इट आर्टिकल 23? राइट टू प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं। ओके, राइट टू प्राइवेसी, सी एक्सप्लिसिटली तो राइट टू प्राइवेसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एज पर द केएस पुट्टास्वामी केस राइट टू प्राइवेसी को हम शामिल करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारे आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्राइवेसी इज कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 21। The next question is freedom of expression, freedom of expression, okay, is included in which article? freedom of speech एक तरह का right to freedom हमारा होता है, and we had six fundamental freedoms अभी जो हमने देखा। तो इनमें से कौन से आर्टिकल में freedom of expression हम देखते हैं? Is it article 15, article 19, article 21 और is it article 22? freedom of expression कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 15 में तो हम राइट टू इक्वालिटी देखते हैं, 19 से हम फ्रीडम की बात करते हैं। ओके, 21 में हमने देख लिया दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज emergency provisions. See, emergency provision of the Constitution of India have been borrowed from. Emergency provisions को हमने कहाँ से लिया है? Is it German Constitution, American Constitution, French Constitution or is it Irish Constitution? Emergency provisions को हमने लिया है ऑप्शन ए, दैट इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को हम वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपके पास वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन में नहीं है तो आप जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजन मैंने बताया, वी हैव 3 इमरजेंसी प्रोविजंस, एक है नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी, देन वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी तो हमने लिया है पहले, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है, नॉट इवन इन कोविड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्करेंट लिस्ट was adopted from. कॉन्करेंट लिस्ट को हमने कहां से लिया है? ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट was adopted from ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस में त्रुटि हो गई थी थोड़ी सी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होते हैं? जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है कि वो लॉज बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, एंड इन द कॉन्करेंट लिस्ट बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज। ओके, एंड दिस वाज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात यहाँ नहीं हो रही, सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हैव बीन मोल्डेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, हमने कहां से इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया है? इज इट ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड रशिया, या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इट हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है,
और अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की हम बात करें, दैट इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, और उसे हमने लिया है अमेरिका से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article of the Constitution of India empowers President to take over the administration of a state on basis of failure of the constitutional machinery? Constitutional machinery जब फेल कर जाती है तो हम प्रेसिडेंट को एम्पावर करते हैं कि आप टेक ओवर कर लीजिए स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को। दैट मीन्स यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है या फिर स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है। तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? इज इट आर्टिकल 365, 352, 356 और 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 356 में हम स्टेट इमरजेंसी देखते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल देखते हैं, एंड 352 में हम नेशनल इमरजेंसी देखते हैं, 360 में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द पावर ऑफ एमनेस्टी हैज बीन गिवन टू, दैट मीन्स नॉमिनल हेड का पावर हमने किस में दिया है? डू प्रेसिडेंट हैव द नॉमिनल हेड पावर? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ये पावर, चीफ ऑफ द आर्मी के पास होती है, या फिर ऑप्शन डी दैट इज द पार्लियामेंट? तो क्वेश्चन नंबर 113 की हम बात करें तो प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ एमनेस्टी एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय, चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है? क्या वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल से इलेक्ट होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट से इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर राज्यसभा। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an objective of the directive principles of the state policy? यहाँ पर पूछा जा रहा है not an objective, okay, of DPSP, and we have the options to ensure a welfare state, to ensure a socio-economic justice, to establish a religious state, या फिर to ensure the creation of the village panchayat. Not an objective. अगर आपने DPSP के बारे में पढ़ा हो, it extends from Article 36 to Article 51, and Article 51A में हम फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने establish a religious state के बारे में कहीं बात नहीं करी है। That means option C is the correct option. To establish a religious state is not an objective of DPSP. The next question is, the head of the government under the parliamentary government enjoys, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के हेड होते हैं, दैट मीन्स आवर प्राइम मिनिस्टर, तो वो कौन सी पावर एंजॉय करते हैं? क्या वो रियल पावर एंजॉय करते हैं, नॉमिनल पावर एंजॉय करते हैं, लिमिटेड पावर एंजॉय करते हैं, या फिर नो पावर? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रियल पावर। अभी हमने बताया कि नॉमिनल पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है एंड द रियल पावर इज वेस्टेड इन द Prime Minister, okay, and he is the head of the government. The next question is, classification of the government as unitary and federal is on the basis of, अगर unitary and federal system के मामले में हम क्लासिफाई कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो किस तरह का क्लासिफिकेशन है? क्या इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, डिविजन ऑफ पावर हो रहा है, डेलीगेट कर रहे हैं हम पावर्स को, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है? यूनिटरी एंड फेडरल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर हमने यहाँ क्यों नहीं करा? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में तो हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई, दोनों तो गवर्नमेंट ही हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं पावर की, यूनिटरी लेवल पर कब पावर होगी और फेडरल लेवल पे क्या पावर होती है, राइट?
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय सी। अमेंडमेंट की प्रोविजंस अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 368 में मेजरली अमेंडमेंट के बारे में बात करी गई है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। आर्टिकल 368 दैट मीन्स पार्ट 20। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेजॉरिटी प्रोविजंस को हम किस तरह से अमेंड करते हैं। क्या पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अमेंड किया जाता है, या फिर पार्लियामेंट ऑन द कंसेंट ऑफ स्टेट की कंसेंट पर हम पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड करते हैं। मेजॉरिटी प्रोविजन की बात हो रही है, नॉट ऑल ऑफ द प्रोविजन। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा मेजॉरिटी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।